So dear students, again I've come with same topic, that is use of preposition before noun and gerund. As we know that there are many prepositions and we need to know about them, that how can we use them before noun and gerund and what is their relation with other sentences also. So that is why I've come with my fourth video on this very particular topic, and I would request you first you go through with all my 3 videos made on this very particular topic, and then you come to watch this video. It would be easy for you to understand the whole thing. Okay, so this is my fourth video on this topic. And one more thing I would tell you, that this topic is very difficult and very important also in synthesis. We are adding, by adding 2 or more simple sentences to make one simple sentence, by adding these, by using this topic, you can say. So what we'll do, first we need to know something, as I have told in my all videos the same thing, that to make a simple sentence, we need to add 2 or more than 2 simple sentences to make one simple sentences, but the condition should be that there should be one finite verb only. Whether we add 2 or 3 or 4 or more than 4, we only, after adding, the thing is that there should be only one finite verb, and this is the rule of to be a simple sentence. Okay, so when we use this rule to to add more than 2 simple sentences or 3 simple sentences to make one simple sentence, so there are certain things which we should keep in mind. First thing is that sometimes it happens that we need to remove rest of the verb from the sentences, because when we add 2 or more than 2 simple sentences, there would be so many verbs, but the rule is there should be one finite verb. So we will keep only one finite verb, and rest of the finite verbs, it can be changed into noun or gerund. Sometimes we change into noun and gerund, and sometimes we remove them. Okay, but in this rule what we do that instead of removing them, we change them into noun and gerund. So let me tell you in Hindi also. तो ये जो मेरा वीडियो बना है, ये मेरा 4th वीडियो है इस टॉपिक पे, तो आप सारे वीडियोस को पहले देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, पहली थिंग। सेकेंड थिंग जो है, इस रूल से जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तो एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और दूसरे फाइनाइट वर्ब को हम क्या करते हैं कि या तो नाउन में या जेरंड में हम चेंज कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पूरे सेंटेंसेस को हमको फ्रेज में बदलना पड़ जाता है। तो जब हम सेंटेंस को फ्रेज में बदलते हैं, फ्रेज क्या होता है आपको मालूम है, फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होता है, और वो एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो मेरे फ्रेज के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। सो द थिंग इज दैट समटाइम्स वी नीड टू चेंज द होल सेंटेंस इनटू अ फ्रेज, है ना। तो जो फ्रेज को चेंज करने का रूल है वो मैंने अपने सेकंड वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब हम फ्रेज को चेंज करते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि पहले तो हम सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसको पॉजिटिव फॉर्म में लाते हैं, यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पॉजिटिव फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है या कोई एडजेक्टिव है, आइदर वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करते हैं कि हम उसको नाउन या जेरंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब वो फ्रेज बन जाता है तो उसके पहले हम एक प्रेपोजिशन लगा देते हैं, कोई सुटेबल प्रेपोजिशन उसके पहले हम लगा देते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपका बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं, या तो हम प्रेपोजिशन फ्रेज वाला सेंटेंस को पहले रखते हैं, दूसरे वाले को बाद में, या दूसरे वाले को पहले रखते हैं, फ्रेज वाले को बाद में, ठीक है। नाउ लेट्स सी that I've taken 2 sentences. First of all, let me tell you about the preposition which I have taken today. On account of, due to and at, these are the 3 prepositions which I have taken today for you to understand. And I've written 2 sentences on the board, and I'll tell you that
how I am going to change, one sentence into a phrase, and then we will use these preposition by putting them in front of that phrase. Okay. The teacher scolded me furiously. First sentence, the teacher scolded me furiously. Second sentence, I was quite displeased. Okay. I repeat, the teacher scolded me furiously. First sentence. Second sentence, I was quite displeased. So, when we are using these preposition on account of due to and at, we must know the condition for using these preposition, and the condition is that the sentence should show the cause and relationship. I mean to say, one sentence should show the reason and other sentence should show the result. Okay. So if we see this two sentences, the teacher scolded me furiously. So this sentence is showing the cause, and second sentence, I was quite displeased, and the reason, this sentence is showing result, because the teacher scolded me furiously, and that is the reason that I became quite displeased. So first sentence is showing reason, and the second one is showing result. Okay. Now, the first sentence which is showing, reason, this sentence we need to change. So let's see how I'm going to change. The teacher scolded me furiously. First, the teacher is subject, scolded is verb, and me is object, and after object I have put a adverb furiously. Okay. So this is the, adverb. And we have only one finite verb, this is scolded. Okay. Now let's see how I am going to change this whole sentence into a phrase. चलो देखते हैं कि कैसे हम इस पूरे सेंटेंस को फ्रेज में बदलते हैं. ओके. तो अब जो ये सेंटेंस है, the teacher scolded me furiously, we need to change this first sentence, because this first sentence is showing, reason. Okay. So what we'll do, that first we will change the teacher, this is a subject, we will change it into, possessive form. So the teachers. Okay. So it would be the teachers. I put an apostrophe s, the teachers. First I have changed this subject in possessive form, into possessive form by adding s to it. The teachers scolded. Then we have this finite verb scolded. So what we'll do, that we will change this finite verb into a noun or gerund. तो अभी जो है इसको हम अगर स्कोल्डेड को हम स्कोल्डिंग कर देंगे, तो ये जेरेंड बन जाएगा. स्कोल्डिंग क्या होता है, जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जो है वो नाउन का ही एक फॉर्म है, और उसमें ना ने नी जुड़ता है, यानी खाना, नहाना, स्मोकिंग करना, डांटना, है ना. तो अब ये बन गया, अभी तक ये फाइनाइट वर्ब था, और फाइनाइट वर्ब में क्या दिखा रहा था, सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब दिखा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा था. The teacher scolded me. Now what I did, that I made it a noun or gerund. I have to make it. So I have changed it into gerund, scolding. Okay. S-C-O-L-D-I-N-G, scolding. Now it has become the teacher scolding. Okay. But we have this adverb, at the end of the sentence. अब इस adverb को हम क्या करते हैं, adjective बना लेते हैं. और एडजेक्टिव बना के, दिस इज नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, वी ऑल नो, है ना. तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आके उसको डिस्क्राइब करता है. तो अगर स्कोल्डेड को हम जो है नाउन बना रहे, स्कोल्डिंग बना रहे, जेरेंड बना रहे, अब चाहे नाउन बोले चाहे जेरेंड बोले एक ही बात है. तो उसको जब जेरेंड बना रहे तो उसके पहले इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बना के रख लेते हैं. फ्यूरियसली एडवर्ब, फ्यूरियस एडजेक्टिव. ठीक है. The teacher's furious
scolding, ठीक है. Now the teachers, इसको मैंने चेंज किया पॉजिटिव फॉर्म में. देन क्या किया मैंने, इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाया, यू नो, फ्यूरियसली. अभी तक तो देखो बेटा ये जो फ्यूरियसली था ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, बट नाउ इट हैज बिकम फ्यूरियस and it is, you know, describing or it is showing, you know, it is telling something important about this noun. Okay, scolding. So the teacher's furious scolding, ये बन गया हमारा पहला सेंटेंस. एंड इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन अकाउंट ऑफ. ठीक है, एक preposition हम लगा रहे हैं तो we need to put this preposition that it on account of. अब मैंने जब ऑन अकाउंट ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन जोड़ा इस फ्रेज के पहले, तो इस द को हम स्मॉल में चेंज कर रहे हैं. नाउ द होल थिंग हैज बिकम ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स, द टीचर्स फ्यूरियस स्कोल्डिंग, ऑन अकाउंट ऑफ, अब द को हटा दिया हमने, ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स फ्यूरियस स्कोल्डिंग. अब मैं सेकेंड सेंटेंस जोड़ दूंगी, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड. नाउ आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, व्हाट डिड आई डू, दैट आई हैव पुट अ कॉमा हियर एंड मेरा ये सेंटेंस तैयार हो गया. एंड विथ वन फाइनाइट वर्ब. नाउ वी हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब, दैट इज displeased. Okay, so I was quite displeased. So यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब बचा, दैट इज was. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया. अब इसको क्या है कि हम इस तरह भी लिख सकते थे कि पहले वाले सेंटेंस को हम पहले लिख सकते थे, I was quite displeased on account of teachers' furious scolding. ओके, तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. नाउ लेट्स सी दैट, यू नो, दिस preposition due to can also be used with the same sentence. And the teacher scolded me furiously, I was quite displeased. And this at preposition can also be used with the same sentence, and it goes like this, that the teacher scolded me furiously, I was quite displeased. So first of all I'll change this teacher in a phrase. It would be possessive form, and it would be the teachers apostrophe is scolded, and first we'll change it to this adverb furious into furiously into furious and scolding. Okay, I made this noun this verb scolded a gerund scolding, तो मैंने इसको बदल दिया the teacher's furious scolding, और उसके पहले हम लगाएंगे due to. ठीक है, अब ये बन गया due to the teacher's furious scolding I was quite disheartened. ये हो गया आपका सेंटेंस. ठीक है, या disheartened या displeased या dissatisfied जो भी है, ठीक है, या disappointed कुछ भी है. So due to teacher's furious scolding I was quite, you know, displeased. यानी सेम थिंग है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे on account of की जगह आपने यहाँ पे ड्यू टू लगा दिया. अच्छा, एक और तरीका जो है वो है एट लगा के आप सीधा इस तरह लिख सकते हैं कि सेकेंड सेंटेंस को आपने पहले लिखा, आप लिख सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट क्या था, डिसप्लीज्ड. आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड. अब डिसप्लीज्ड के बाद हम एट लगा रहे हैं, एट माई. अब फ्रेज वाला जो हिस्सा है वो हम क्या करेंगे, एट लगाने के बाद फ्रेज वाला हिस्सा जोड़ देंगे. एट माई टीचर्स
फ्यूरियस, पता नहीं यहाँ तक कैमरा जा रहे हैं कि नहीं, स्कोल्डिंग। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ लगा के भी आप कर सकते हैं, ड्यू टू लगा के भी कर सकते हैं, और ये जो है एट लगा के भी कर सकते हैं कि आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। इसमें क्या किया कि हमने जो है दूसरा वाला सेंटेंस को पहले लिखा, जो कि रीजन दिखा रहा है उसको पहले लिखा, उसके बाद मैंने एट लिखा, और एट लिखने के बाद मैंने फर्स्ट वाला जो जिसको मैंने फ्रेज में चेंज किया था उस सेंटेंस को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों जो है प्रेपोजिशन को यूज करके कैसे हम सेंटेंस। नाउ टेक इट अनदर एग्जांपल। रवि आंसर्ड पोलाइटली, द टीचर बिकेम हैप्पी। वन सेंटेंस इज शोइंग रीजन and second sentence is showing result. Okay, now Ravi subject answered finite verb and politely adverb. So we see that here we have one finite verb, and in second sentence the teacher became happy. So we here second finite verb became. So what we need to do that we after adding these two sentences there should be one finite verb. Okay, so what we'll do that Ravi answered politely, we will change Ravi into possessive form. As I told you that first we need to make this whole sentence a phrase. पहले हमें इसे phrase बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे रवीज बना दिया। पहले हमने possessive form में चेंज किया रवीज, और उसके बाद ये तो verb है ना। answered means this verb is showing past indefinite tense, second form of the verb। अब इसे क्या करना है, नाउन बनाना है। ठीक है, जब हम नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा आंसर, है ना। आंसर कैसे आंसर होगा, बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैम फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो आंसर हो सकता है ना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, है ना, इस तरह होता है कि नहीं। मतलब फर्स्ट फॉर्म आंसर, सेकंड फॉर्म जैसे ये आंसर्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी आंसर्ड। लेकिन बेटा ये है, ये आंसर जो है कभी कभी क्या होता है कि कोई जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। यहाँ पे आंसर है, और देखो मैं एक सेंटेंस में यूज करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज अ नाउन। अब देखो, ही गेव मी दिस आंसर, रवि गेव मी दिस आंसर। When I ask him a question, he gave me this answer. अब जब gave me this answer यानी gave आपका verb हो गया, और उसके बाद ये आंसर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन और प्रोनाउन ही आता है। तो यहाँ पे जो आंसर वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है कि नहीं। भाई आपको पता है कि जो भी कोई नाउन का काम करे, मतलब जहां भी नाउन के जितने भी काम होते हैं आपको पता है कि वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, फ्रेज इन अपोजिशन बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो इतने सारे वर्क है नाउन के। तो जब मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई आस्क्ड रवि अ क्वेश्चन एंड रवि gave me an answer, अगर मैं बोलूं रवि gave me an answer, तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो इसीलिए आंसर नाउन है। लेकिन अगर मैं ये बोलती रवि आंसर्ड मी, तो रवि के तुरंत बाद आंसर आ रहा है, तो वहां पे वो वर्ब का काम करता है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे देखो सेंटेंस के तुरंत बाद आंसर्ड आया तो ये वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं रवि का आंसर यानी रवीज आंसर, भाई देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो नाउन ही होगा, है ना। भाई आप कहेंगे मेरा भाई, मेरी पर्स, मेरी चीजें, है ना, मेरा बॉटल, तो माई बॉटल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, अब देखो सब नाउन है। तो यहाँ पे रवीज आंसर जब होगा तो ये फिर क्या है, दिस इज अ नाउन। तो यहाँ पे देखिए रवि आंसर पोलाइटली, तो मैंने रवि को क्या किया कि मैंने इसको चेंज कर दिया आपका पॉजिटिव फॉर्म में। तो आफ्टर चेंजिंग इट इनटू पॉजिटिव फॉर्म आई हैव रिटन द दिस इज
noun is answered को this answered, this is a verb I have changed into a noun answer. अब आंसर जो मैंने लिख तो लिया, लेकिन आंसर के बाद इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था पोलाइटली, तो इस वर्ड को भी तो हमें लिखना है, तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव बना के हम यहाँ पे पोलाइट लिखेंगे. पोलाइट क्या हो गया बेटा, दिस इज एडजेक्टिव. पोलाइटली क्या हो गया, है ना, पोलाइटली एडवर्ब हो गया, पोलाइट आपका हो गया ये एडजेक्टिव हो गया, और पोलाइटनेस अगर मैं बोलूं तो नाउन हो जाता है. तो हमें क्या करना है, हमें इस एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर देना है पोलाइट, क्योंकि उसके बाद हम एक नाउन रखने वाले हैं. तो पोलाइट आंसर, ठीक है. नाउ ये जो आपका एडवर्ब था, अब ये एडजेक्टिव का काम करने लगा है इस नाउन के पहले आके, और इसके बाद यहाँ पे क्या काम कर रहा था, इस वर्ब को यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा था, इसलिए एडवर्ब था. रवीज पोलाइट आंसर, यहाँ तक तो हमें फ्रेज मिल गया है एक. रवि आंसर्ड पोलाइटली, रवीज पोलाइट आंसर. अब इसके पहले हम क्या करेंगे, या तो हम ऑन अकाउंट ऑफ लगाएंगे, क्योंकि हमें एक फ्रेज के पहले एक सुटेबल प्रेपोजिशन लगाना होता है. या तो हम ऑन अकाउंट ऑफ लगाएंगे, या फिर हम ड्यू टू लगाएंगे. एट नहीं लगा सकते. एट अगर हम लगाएंगे तो इस सेंटेंस को, ये भी एट भी लगा सकते हैं, बता रहे कैसे. ऑन अकाउंट ऑफ रवीज पोलाइट आंसर. अब हम सेकेंड सेंटेंस जोड़ देंगे, द टीचर बिकेम हैप्पी. द टीचर बिकेम हैप्पी. ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस. और हमारे पास अब जो है बिकेम, एक खाली फाइनाइट वर्ब है. इसको भी इस तरह कह सकते थे, ड्यू टू रवीज पोलाइट आंसर द टीचर बिकेम हैप्पी. अगर हमको एट यूज करना है तो हम कहेंगे द टीचर बिकेम हैप्पी. अब हम पहले वाले सेंटेंस को, दूसरे वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे इस तरह, द टीचर बिकेम हैप्पी. अब हम एट लगाएंगे, एट. अब फ्रेज वाला हिस्सा जोड़ देंगे, एट रवीज पोलाइट आंसर. तो जो है मेरा ये प्रपोजिशन बिफोर नाउन एंड जेरेंड वाला सीरीज खत्म होता है, और मैं नेक्स्ट जो आपका ये वाला जो रूल है वो मैं कंजंक्शन लेके आऊंगी, कि हाउ टू ऐड टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस टू मेक वन सिंपल सेंटेंस बाय एडिंग कंजंक्शन, बाय यूजिंग कंजंक्शन. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो बनाएंगे. आप लोग मुझे कमेंट नहीं देते और बताते भी नहीं है कि आपको जो है वो पसंद आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट तो जरूर ही दीजिएगा. थैंक यू सो मच.